Hello student, this is the history chapter 11. Chapter name is New Empire and Kingdom. In this chapter, we discuss about the decline of the Kushana Empire, the Gupta Empire, Chandragupta first, Samudragupta, Chandragupta second and decline of the Gupta Empire. यानी इस चैप्टर में बेसिकली we discuss about the Gupta Empire. Student, growth of kingdoms and change therein was a continuous phenomenon. With the passage of time, the new ruler emerged. They conquered different regions and had different policies of governance. The difference which come about is that this was now in variation to earlier system that only Kshatriya could rule. Now, people from the Vaishya community were coming to पावर. यानी कहने का मतलब जो किंगडम होता है वो चेंजिंग हमेशा होता रहता है, कॉन्टिन्यू होता रहता था, ये आज भी होता है. जैसे देखा जाए एक रूलर के आने के बाद नए रूलर्स बनते हैं और जो नए रूलर्स होते हैं उनकी जो गवर्नेंस सिस्टम होती है वो डिफरेंस होती है. जितने भी वेरिएशन हो फिर भी ज़्यादातर हम लोग देखे होंगे कि क्षत्रिय जो रूलर्स ही रूल करते थे. पर इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे वैश्य कम्युनिटी यानी जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ है उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया और इंडिया पे रूल किया, जिसे हम लोग गुप्ता एम्पायर के नाम से जानते हैं. In this chapter, we shall study about the important king happening of the period covering 4th century to 7th century. यानी देखा जाए तो ये जो चैप्टर है इसको गुप्ता पीरियड के नाम से जानते हैं और इसमें देखेंगे डिफरेंट इंपॉर्टेंट किंगडम में डिफरेंट रूलर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं जो कि रूल करते हैं इंडिया में 4th to 7th century अबाउट 300 years on India. The decline of the Kushana Empire. The downfall of Kushana Empire began in the 3rd century but is earliest 4th century. Many independent states come into being in the northern part of India. They were being ruled different king having small kingdom. यानी देखा जाए कुशाना एम्पायर के इन के बाद फिर से जो नॉर्दर्न इंडिया होता है डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट स्टेट में डिवाइड हो जाता है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट रूलर रूल करते हैं. द गुप्ता एम्पायर ऑन द kingdom in Magadha region was ruled by a king named Sri Gupta. It is said that he belonged to the Vaishya community and this was different from the previous trend of kings being from the Kshatriya clan only. यानी कहने का मतलब इसी टाइम में मगध पे एक पर्सन रूल करते थे जिसका नाम था श्री गुप्ता, जो कि अपने आप को वैश्य कम्युनिटी या ट्रेडर कम्युनिटी से बिलोंग मानते थे. पर ये डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं कि जो पहले के राजाए हुए वो क्षत्रिय कम्युनिटी से थे, पर ये जो रूलर थे ये अपने आप को वैसे या ट्रेडर कम्युनिटी से मानते थे. इसीलिए इस किंगडम को या इस एम्पायर को गुप्ता एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है. ही रूल इन दिस पीरियड अराउंड 280 सेंचुरी. स्टूडेंट, इन द गुप्ता एम्पायर अबाउट 17 रूलर रूल on India in different time, but main rulers are the founder Sri Gupta, then after Ghatotkacha Gupta, Chandragupta first, the actual main ruler of Gupta Empire, Samudra Gupta, Ram Gupta, Chandragupta second, Kumara Gupta, Skand Gupta were different main rulers of Gupta Empire. Then let us start one by one. Student, we already discussed about the Sri Gupta, the starting ruler of Gupta Empire. Then after his son Ghatotkacha Gupta took over the region as he continued rule for about 40 years. Then came his son Chandragupta first. यानी देखा जाए घटोत्कच गुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता फर्स्ट गुप्ता एम्पायर के रूलर होते हैं. द चंद्रगुप्ता फर्स्ट इज नॉट इज बी मिक्सड ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य because both are the difference. Chandragupta Maurya they belong from the Maurya Empire. Chandragupta first belong the Gupta Empire. Since there is not another kingdom named Chandragupta, after some time they recognize that Chandragupta first and Chandragupta second see also we discuss. यानी हम लोग इस जो चैप्टर में चंद्रगुप्ता फर्स्ट और चंद्रगुप्ता सेकेंड या चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के नाम से भी राजाओं के नाम पढ़ेंगे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से डिफरेंस है. Chandragupta first, third ruler, but is the actual main ruler of Gupta Empire. The rule of Chandragupta first was under a lot of the influence of Kumara Devi, the Lichvi princess. Coin bearing the figures of princes speak of the extent of his influence. Chandragupta first became the king of Patliputra, established a kingdom along the Ganga
रिवर्स। यानी देखा जाए चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि लिच्छवी प्रिंसेस कुमारी देवी से इन्होंने मैरिज किया था, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो कॉइन होते हैं उसका इन्फ्लुएंस उस पर साफ दिखाई देता है कि उस कॉइन पे कुमारी देवी की भी फिगर बना हुआ है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ऐसे रूलर्स थे जो गंगा और उसके आसपास के एरियाज को वो जीतते हैं और मगध एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। स्पेशली हिज किंगडम एक्सटेंड फ्रॉम बंगाल टू प्रयाग। द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट इज सेड टू हैव कम टू एन इन अबाउट 330 सेंचुरी। समुद्रगुप्त वाज सक्सेडेड बाय ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त एम्पायर के रूलर होते हैं अबाउट 330 सेंचुरी। ही रिज्ड फॉर अबाउट 50 years inscription on pillar which erected by the Ashoka has the inscription of समुद्रगुप्त on the other side। यानी देखा जाए तो इसने अबाउट 50 years तक इंडिया पे रूल करते हैं। आफ्टर द सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ द एम्पायर ही subdued the power, revolting against the authority in the Gangetic plain and brought there the dominant under this rule। कहने का मतलब आफ्टर जब राजा बनने के बाद वो सबसे पहले अपने एरियाज को एक्सपेंड करते हैं, स्पेशली गंगा प्लान और उसके आसपास के एरियाज में डोमिनेट करते हैं। देन आफ्टर ही सेड टू हैव लीड ए मिलिट्री कैंपेन अक्रॉस द डेक्कन रीजन एंड ऑल्सो कंट्रोल द फॉरेस्ट ट्राइब ऑफ द विंध्या रीजन। वो देन आफ्टर वो दक्षिण भारत पे अटैक करते हैं, साथ साथ वो विंध्या रीजन्स के जो ट्राइबल्स कम्युनिटी होती थी उनको भी ये कंट्रोल करते हैं। He performed the Ashwamedha Yajna, established the declare his supremacy, his kingdom including Lower Bengal, Upper Assam and Nepal also। और वह अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं अपने राज्य को एक्सपेंड करने के लिए और अपने सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। उनका जो किंगडम था, एक तरह से देखा जाए जो मॉडर्न बंगाल है, अपर आसाम है और नेपाल तक एक्सटेंड हो गया था। He led another campaign along the eastern coast across the modern day of Odisha, Andhra Pradesh, another Tamil Nadu, the captured large territories. Even though the late of the kings remained the power of local rulers, but they were ordered to accept his supremacy, they were required to pay him tax and revenue also। यानी देखा जाए उनका जो किंगडम था आगे जाके मॉडर्न उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक एक्सटेंड हो गया, यानी मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इंडिया। He also declared themselves as a dominant and supremacy rulers of the Indian subcontinent, and that's why समुद्रगुप्त also called the Indian नेपोलियन। और इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक ग्रेट कॉन्करेट तो था ही, यानी एक ग्रेट रूलर तो था ही, साथ साथ वो आर्ट और म्यूजिक के भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जैसे दे रहे हैं यहाँ, समुद्रगुप्त वाज ए गुड specifically in music and the singing. He was also known as the poetry. He also played musical instrument including the veena also। he respected the learned people and gave rewarded for the learning the Sanskrit language। he also donated money to the Brahmins। यानी देखा जाए तो समुद्रगुप्त एक तरह से एक योद्धा के साथ साथ वो म्यूजिक और आर्ट को भी बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, उसको प्रमोट करते थे। स्पेशली वो स्वयं भी बीना को बहुत अच्छा प्लेइंग करते थे और देखा जाए तो पोइट भी थे। संस्कृत लैंग्वेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और वो ब्राह्मण्स एंड अदर लोगों को, जो स्कॉलर्स एंड द आर्टिशियन होते थे, उनको मनी भी डोनेट करते थे। कॉइन्स एंड करेंसी। Historians have found many gold coins from the period of Samudragupta. The coin had great influence on this design. The impression of this coin varied. Thus is expected the kings playing veena, holding a bow and ट्रैम्पेलिंग ए टाइगर etc। यानी देखा जा रहा है तो समुद्रगुप्ता के टाइम में जो गोल्ड कॉइन बहुत सारे मिले हैं जिसमें कि समुद्रगुप्ता की डिज़ाइन को शो किया गया, जो कि ग्रीक इन्फ्लुएंस से के रूप में देखा जाता है। साथ साथ इसमें देखा जा रहा है कि किंग जो है वीणा प्लेइंग कर रहे हैं और द प्रायर इंस्क्रिप्शन डिपिक्टेड हिम एज ए हीरोज ऑफ द 100 बैटल। दिस प्रशस्ति डिस्क्राइब हिम एज महाराजा धीराज ऑफ किंग ऑफ किंग्स। यानी प्रयाग में जो प्रशस्ति मिला, इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें ये डिस्क्राइब किए गए कि समुद्रगुप्ता किंग्स ऑफ किंग्स यानी महाराजा धीराज थे और उनको 100 बैटल्स के हीरोज के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। जस्ट लाइक इन दिस फिगर द शो द एक्चुअल कॉइन विच फाउंड द गोल्ड कॉइन ऑल्सो मेंशन the names and which else the figure of Samudragupta
यानी इसमें गोल्ड कॉइन है समुद्रगुप्ता के, जिसमें ये शो किया जाए, इसमें दिखाया गया है कि समुद्रगुप्ता वीणा प्लेइंग कर रहे हैं। देन आफ्टर समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकेंड इस्टेब्लिश द गुप्ता एम्पायर एंड बिकेम द सक्सेसर ऑफ गुप्ता एम्पायर। यानी देखा जाए तो समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता सेकेंड गुप्ता एम्पायर के राजा बनते हैं। इट ऑल्सो द मोस्ट डोमिनेट या मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स अमॉन्ग द ऑल रूलर्स, दिस टाइम ऑल्सो नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। यानी देखा जाए तो चंद्रगुप्ता सेकेंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये जितने भी राजाएं हुए गुप्ता एम्पायर में इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इनके टाइम में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है आर्ट कल्चर का, और इनके टाइम को यह देखा जाए तो गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जैसे दे रहा है चंद्रगुप्ता सेकेंड वाज द कॉन्कर्ड लाइक हिज फादर समुद्रगुप्ता एंड ही वाज आल्सो नोन एज द विक्रमादित्य। ही मेड मैनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट विच द इंक्लूडिंग द conquest of Malwa, Gujarat, Saurashtra, which were ruled under the Saka ruler, is also known as the able to control 3 ports, Bharuch, Sopra and the Kambe। यानी देखा जाए तो वो मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र पर भी अटैक करते हैं, उनको जीतते हैं। साथ साथ बहुत सारे ऐसे पोर्ट होते हैं जैसे भरूच, सोपरा एंड द कॉम्बे, इनको ये जीतते हैं। This facilitated trade with the foreign countries. Ujjain appeared to him as the inland center upon the which most trade route. Chandragupta occupied the throne by nearly 40 years. Patliputra turned into a flourishing city under his rule। यानी कहने का मतलब ये अपने टाइम में अपने समुद्रगुप्त के बाद ये अपने राज्य को और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, स्पेशली ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। साथ साथ ट्रेडिंग सेंटर भी स्टैब्लिश करते हैं, स्पेशली उज्जैन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। साथ साथ पाटलिपुत्र देखा जाए जो कैपिटल सिटी था उसके टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। ही रूल अबाउट 40 ईयर्स ऑन इंडिया, और लगभग ये 40 साल तक भारत पे रूल करते हैं। चंद्रगुप्ता सेकेंड वाज ऑल्सो नोन एज द साकड़ी विच मीन्स द कॉन्कर ऑफ द साक्य चक्रवर्ती विच मीन्स द यूनिवर्सल एम्पायर। यानी चंद्रगुप्ता सेकेंड को साकड़ी और चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे चक्रवर्ती मीन्स द यूनिवर्सल एम्पायर, यानी पूरे दुनिया का राजा। ही वाज ऑल्सो famously known as have the court with 9 noble and learned men called the Navaratna, or these 9 jewels, this Navaratna including the famous poet Kalidasa and the astronomer Aryabhatta। चंद्रगुप्ता सेकेंड जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इसमें वो फेमस थे अपने 9 रत्न के लिए, जिसको कि 9 ज्वेल्स के नाम से जानते हैं। इनके दरबार में ऐसे फेमस 9 लोग रहते थे जिसमें कुछ नाम है जैसे कि फेमस पोएट कालिदास एंड द एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट। द रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर स्टूडेंट इन दिस मैप ऑल्सो शो द रीजन एरिया ऑफ द गुप्ता एम्पायर इन डिफरेंट टाइम ऑफ गुप्ता किंगडम। Student, after the Chandragupta second, then others 10 rulers rule on Gupta Empire, especially Kumara Gupta first, Skand Gupta. But the finally Gupta Empire declined in 550 century. The last ruler of Gupta Empire विष्णु गुप्ता। यानी देखा जाए तो गुप्ता एम्पायर भी इंड होते हैं और इसके लास्ट रूलर होते हैं विष्णु Gupta। Then student, next topic we discuss about the administration or the development of Gupta Empire means economic growth, religion growth, art and culture growth in that time। स्टूडेंट देखा जाए तो गुप्ता एम्पायर ऑल्सो नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। स्पेशली देखा जाए गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम में आर्ट कल्चर साइंस का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। First we discuss about the administration. The Gupta Empire showed that a great administrative skill. They had the smooth system of revenue collection and growing of the territories. The welfare activities were run properly. The digging of well, making of roads, canal helped to the improved agriculture and related trade। यानी गुप्ता एम्पायर जो था ये गुड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल को शो करते हैं। ये जो रेवेन्यू सिस्टम नए रेवेन्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं, साथ साथ अपने एरियाज में ये बहुत सारे वेलफेयर का काम करते हैं, स्पेशली द डिगिंग ऑफ वेल, मेकिंग रोड्स, कैनल्स टू हेल्प इम्प्रूव द एग्रीकल्चर एरियाज। Other developments, science and literature flourished. The art of Ajanta Ellora caves, architecture of the Sanchi Suta temple of Jhansi Devgarh and the Kanpur are fine example of the art and architecture of this period. The carving making of stone statue of the god Godse also the remarkable improvement for earlier time।
कहने का मतलब आर्ट और कल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, स्पेशली अजंता एलोरा केव्स की बात करें, सांची स्तूपा की बात करें, झांसी में देवगढ़ और कानपुर में जो भीतर गांव में जो टेम्पल्स है उसकी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। साथ साथ जो स्टैचू का जो डेवलपमेंट होता है उसकी बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है साइंस और लिटरेचर एंड आर्ट में। यह एग्जाम्पल दे रहे हैं, द आयरन पिलर इन दिल्ली वॉज मेड ड्यूरिंग दिस रीजन चंद्रगुप्ता सेकेंड। आयरन पिलर जिसको महरौली में मिला था, आज ये कुतुब मीनार के कैंपस में इस्टेब्लिश्ड है। इस पिलर जो आयरन से बना हुआ है, पर इतने सालों के बाद भी आज भी इसमें जंग नहीं लगा हुआ। इस इज द मिस्टीरियस टॉपिक बिफोर द साइंटिस्ट। केव पेंटिंग ऑफ अजंता एंड एलोरास, और देखा जाए ये केव पेंटिंग है जो कि ये डेवलप होता है गुप्ता टाइम में, इट ऑल्सो द वर्ल्ड हेरिटेज। Economic growth, the improvement in agriculture production, development of art, craft, building, trade within the country with the foreign countries brought prosperity. The Gupta period therefore they describe the golden age of Indian history. यानी देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, आर्ट क्राफ्ट बिल्डिंग ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, फॉरेन के साथ यहाँ पर बिजनेस और ट्रेड बढ़ता है, जिससे कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इसीलिए इस टाइम को गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। यह जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, स्पेशली इसी एज के बारे में ये बात कही जाती है। रिलीजन, द गुप्ता शो द प्रेफरेंस ऑफ देयर फैमिली डाइटी विष्णु, दे अप्रिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ परफेक्ट फ्रीडम ऑफ वर्शिप, न्यू टेम्पल वेयर बीइंग। यानी देखा जाए जो गुप्तास थे उनका वो विष्णु यानी हिंदूज थे स्टार्टिंग में, और वो विष्णु के डिवोटेड थे। साथ साथ उन्हें अदर जो भी रिलीजन्स है उसको फ्रीडम देते हैं, न्यू टेम्पल बनते हैं इस टाइम में। बिल्ड बेटर एट्रैक्टिव आइडल्स वेयर बीइंग मेड ऑफ हिंदूज गॉड एंड गॉड्स, सो दिस ईयर वाज द रिवेल ऑफ हिंदुज़म टू ग्रेट डिग्री। यानी इस टाइम में हिंदू जो रिलीजन था बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। देन स्टूडेंट, in this chapter, the chapter name is the Gupta period, we discuss about the Gupta Empire which ruled about 300 years on India, 4th to 7th century especially. In this period, the lot of development in India means the agriculture, science, art, culture. That's why known of the golden period of Indian history. Then next topic, the exercise portion, the complete exercise and submit on time. Then thank you.